First RS. Thank you. Wait. Sir, इधर. Sir. Okay, thank you. Thank you. Sir, इधर. Thank you. Wait. Wait. Right now. Very warm welcome to everyone who's joined us today. We are assembled this evening for the release of our publication, The Lost Hero of Banaras, Babu Jagat Singh, by Mr. H.A. Qureshi and Dr. Shreya Pathak. On behalf of Primus Books and our holding company Ratna Sagar, I'd like to thank you all for participating in this event. On this occasion, we'd like to welcome Professor Salil Mishra, Professor R.P. Bahuguna, Professor Mayank Kumar and Dr. Dhruv Kumar Singh. Before we begin with the event, I'd like to invite Dr. Prasun Chatterjee to address the audience. Good afternoon, everyone. From Primus Books, I would like to welcome our respected panelists, Professor Salil Mishra, Professor R.P. Bahuguna, Professor Mayank Kumar, and Professor Dhruv Kumar Singh. The author of the book, Mr. H.A. Qureshi, is here. We would like to welcome him. Thank you for being here, sir. And the descendant of Babu Jagat Singh, Mr. Pradeep Singh, is here. We would like to welcome him. Our managing director, Mr. Shugat Jain, could not be here. It was in the plans, but there is some urgent reason because of which he could not join us. Our founder, Mr. B.N. Verma, is here. We would like to welcome him. And our colleagues from Ratna Sagar and Primus Books, we would like to welcome them. And I extend my heartiest welcome and good wishes to everyone who's joined us in the audience today. It has been a wonderful journey for us to edit and publish The Lost Hero of Banaras, which seeks to revise some important aspects of the history of Banaras and Sarnath. We look forward to an engaging session of discussion about the book after its launch. Thank you. The Lost Hero of Banaras examines the life and legacy of Babu Jagat Singh, a scion of the royal family of Banaras and a significant figure in Indian history of the late 18th and early 19th centuries. The book focuses on an anti-British struggle that took place in Banaras in 1799, led by Babu Jagat Singh. Now, before we move on to the main event, which promises to be a rich and truly interdisciplinary discussion, allow me to introduce this evening's discussants, beginning with our esteemed authors. Mr. H.A. Qureshi joined the Geological Survey of India in 1965, from where he retired as a gazetted officer in 2005.
He is an alumnus of the Universities of Delhi, Jaipur, and Lucknow. He is also proficient in multiple languages, including Arabic, Persian, and Urdu. Apart from numerous research papers on Indian history and culture, he has authored several books which include Iqbal, The Flickers of an Independent Nawabi, Wazir Ali Khan of Awadh, in 2 volumes, The Mughals, the English and the Rulers of Awadh, a kaleidoscopic study, and a book on the revolt of 1857. Dr. Shreya Pathak is Assistant Professor at Vasanta College for Women, Varanasi. She has contributed several papers to research journals and is the author of The Ruling Dynasty of Benares State. I'd also like to welcome Mr. Pradeep Singh, who worked hard in getting together a team to research on this subject. We also have 4 eminent discussants with us this evening. Our first speaker, Professor Salil Mishra, currently teaches at the School of Liberal Studies, Dr. B.R. Ambedkar University. Professor Mishra has previously taught history at the Department of History and Culture, Jamia Millia Islamia. His work engages with modern Indian history with special focus on the Indian national movement, communal politics, partition of the subcontinent, politics of language, Hindi and Urdu, nationalism and identity politics. He has authored A Narrative of Communal Politics, Uttar Pradesh, 1937 to 39, a monograph in Hindi, Swaraj Party, and has published several articles in various books, journals, and newspapers. Our next speaker is Professor R.P. Bahuguna, who is a retired professor and former head of the Department of History and Culture, Jamia Millia Islamia. His research deeply engages with Bhakti and Sufi movement in medieval India, comparative religion, late pre-colonial Rajasthan, and history of Central Himalayan region. He has co-edited Negotiating Religion, Perspectives from Indian History, Revisiting the History of Medieval Rajasthan, Essays for Professor Dilbag Singh, published by Primus Books, and Reconfiguring the Historical Landscape of Rajasthan, Essays for GSL Devra. Professor Bahuguna published a monograph titled Conflict and Assimilation in Medieval North Indian Bhakti, an Alternative Approach. He requests all the panelists to formally release the book and hold it up for the audience. Mr. Prasoon Chatterjee, Ms. Amrapali Sharma, Professor Bahuguna, Professor Mayank Kumar, Professor Dhruv Kumar Singh. मैं प्राइमस और जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट को इस प्रयास के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस किताब को अभी हम लोगों ने समर्पित किया है, पब्लिक के लिए लोकार्पण किया है, जिसको रिलीज़ किया है, मेरे हिसाब से एक हिस्टोरियन के नज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किताब का मेरे लिए, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के लिए, 2 लेवल पर महत्व है। पहला तो ये
कि हमारी जो जानकारी है उसमें इजाफा हुआ है उसके लेवल पर, और दूसरा मेरा मानना है कि एक प्रपोज्ड इंटरवेंशन या हस्तक्षेप उस स्तर पे। मैं दोनों को 5-5 मिनट में आपके सामने रखता हूं। पहला तो ये इजाफा जो हमारी जानकारी में हुआ है वो ये है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई को आमतौर पे 2 हिस्सों में बांट के देखा गया है। एक तो वो जो कि पारंपरिक संघर्ष थे, जो काफ़ी जुझारू थे, लेकिन स्थानीय भी थे और अलग अलग वर्गों के, अलग अलग तबकों के थे, किसानों के, ट्राइब्स के, जमींदारों के, चीफटेंस के, स्थानीय शासकों के। 1757 से लेके लगभग हमारे देश में अलग अलग जगहों पर छुटपुट, कहीं छोटे तो कहीं बड़े, लगभग 200 के करीब विद्रोह हुए हैं 19वीं सदी के अंत तक, और इसका बहुत बड़ा क्लाइमैक्स जो है वो 1857 था। दूसरा दौर शुरू होता है लगभग उसके बाद से, जब साम्राज्यवाद विरोध, जो कि 1757 से काफी मुखर और काफी स्पष्ट था, वो राष्ट्रवाद की एक परिकल्पना, उसकी अवधारणा के साथ जुड़ता है और एक नया सिलसिला शुरू होता है, एक व्यवस्थित, एक संगठित, एक पैन इंडियन, अखिल भारतीय संघर्ष पे, जिसकी की परिणति कमोबेश 1947 में हमारी आजादी में होती है। निश्चित रूप से जो दूसरा दौर है हमारी आज़ादी का, इस पर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, बहुत सारे दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी मेमोयर्स हैं, बहुत सारे लोग थे जो जीवित थे काफ़ी समय तक, जो, और इस वजह से जो हमारी आज़ादी का जो संघर्ष का ये वाला जो दूसरा दौर है, इस पर हमारी जानकारी अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ हम जानते हैं। लेकिन जो 1857 से पहले के संघर्ष हैं, जो पारंपरिक संघर्ष हैं, उन पर अपेक्षाकृत काफी कम लिखा गया है और लिखना बहुत मुश्किल भी है। हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, मेमोयर्स भी उतने नहीं हैं, और हमारी जानकारी भी काफी कम है। बहुत सारे ऐसे संघर्ष थे, वो या तो एक एपिसोड की तरह या एक घटना, परिघटना की तरह होते थे। वो एक घटना है, वो एक दिन की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको एक सिंगल एपिसोड की तरह होती थी, और लगता था कि ये बहुत सारी एपिसोड्स हैं स्ट्रगल की, संघर्ष की, जो कि उस तरह से कनेक्टेड एक दूसरे से नहीं है। उनकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती थी। ये जो किताब है जिसको कि आज हमने समर्पित किया है पब्लिक स्फीयर, पब्लिक के लिए, ये किताब एक ऐसी ही घटना, एक ऐसे ही एपिसोड, एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, उस पर प्रकाश डालती है। 1799 में बनारस में एक संघर्ष हुआ जिसमें बाबू जगत सिंह, जो कि वहां के जमींदार थे, और वजीर अली, जो अवध के राजा थे, जिनको कि वहां पर अपदस्थ कर दिया गया था, वहां से वो बनारस में आ गए थे। इन दोनों ने मिलकर उसका नेतृत्व किया था। दोनों को ही बाबू जगत था पावर को लेके, सक्सेशन को लेके, और दोनों ही लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उस लड़ाई में जो साम्राज्यवाद विरोध है वो बहुत मुखर था, वो बहुत स्पष्ट था। साम्राज्यवाद विरोध और उसके लिए संघर्ष, और उस संघर्ष के लिए कोई भी कुर्बानी देने का जज्बा, ये बहुत क्लियर था। तो इस पहले दौर के जो संघर्ष हैं, जिनमें से एक बड़े संघर्ष की कहानी ये किताब कहती है, और जो दूसरा राउंड स्ट्रगल्स का शुरू होता है 1880-85 के बाद में, उन दोनों में एक कनेक्टिविटी थी, उन दोनों में एक जुड़ाव था। अक्सर वो हमारे इतिहास लेखन में बहुत स्पष्ट रूप से आ नहीं पाता है, लेकिन निश्चित रूप से एक कनेक्टिविटी थी। निश्चित रूप से इन शुरुआती संघर्षों ने, जिनमें से एक संघर्ष का जिक्र ये किताब करती है, इन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड तैयार की होगी, एक चेतना और कॉन्शियसनेस के स्तर पे, एक ट्रेडिशन के स्तर पे, विरोध की एक बहुत नई, बहुत रिच, बहुत ही जुझारू परंपरा की शुरुआत की, जिसने कि थोड़ा सा म्यूटेट होते हुए अलग शक्ल सूरत अख्तियार की 19-20वीं सदी में। तो ये दो जो फेज हैं हमारी आज़ादी की लड़ाई के, इनके बीच में एक गहरा रिश्ता है, एक खास कनेक्टिविटी है, जिसको कि समझने की जरूरत है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तो इस किताब ने इस पारंपरिक संघर्ष के एक बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड को उजागर किया है, उस पर जानकारी दी है, जो कि इसका एक महत्व है, और इसको एक लंबे
कॉर्पस के साथ देखा जाना चाहिए, जिसमें कि पहले राउंड में और दूसरे राउंड की स्ट्रगल्स में एक जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी, उनकी जो कॉमनैलिटी है वो ज्यादा बेहतर उजागर हो पाए। दूसरा जो प्रपोज्ड इंटरवेंशन की मैंने बात की वो ये है कि ये किताब एक इंटरवेंशन के लिए एक प्ली है, एक आग्रह है। वो प्ली क्या है, वो आग्रह क्या है? दोस्तों, हमारी हिस्ट्री राइटिंग में स्थानीयता को एक खास जगह दी जानी चाहिए, दिए जाने की जरूरत है। जब हमारे इतिहास लेखन में जब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप 80 के दशक में हुआ और वो बाद में और भी ज्यादा रिच और समृद्ध हुआ, तो अक्सर उसमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो से अभिप्राय जो था वो समाज के वंचित समूहों से था और उनकी लड़ाई, उनके जीवन, उनकी संघर्ष, उनकी कल्चर से था। लेकिन सरोकारों के इस दायरे में स्थानीय हिस्ट्री को भी लाना है, स्थानीय इलीट, अभिजात वर्ग को भी शामिल किए जाने की जरूरत है। सिर्फ वही नहीं जो कि वंचित समूह थे, लेकिन सिर्फ वो भी जो कि स्थानीय स्तर पर वो वहां के जो इलीट थे, जो जमींदार थे, जो राजा रजवाड़े थे, वो भी किस तरह की राजनीति कर रहे थे, किस तरह का संघर्ष कर रहे थे, किस तरह से लोगों का लामबंदीकरण कर रहे थे। दूसरी बात यह कि जो 1799 का विद्रोह है जिस पर की यह किताब है, 1799 में बनारस की जो लड़ाई हुई उसमें अक्सर वजीर अली की भूमिका का महत्व तो काफी देखा गया है और जो कि ठीक भी है, काफी उनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने लीडरशिप उसको दी थी। लेकिन उसके साथ साथ बाबू जगत सिंह की भूमिका कुछ नजरअंदाज हो गई है, वो उतने स्पष्ट रूप से वो आगे सामने निकल के हमारे नहीं आती है। इस किताब की कोशिश है कि वजीर अली के साथ साथ, ये मतलब एक दूसरे के बरक्स नहीं है, दिस और दैट नहीं है, वजीर अली की भूमिका के साथ साथ बाबू जगत सिंह का जो योगदान है, का जो भूमिका है, जो उनका सैक्रिफाइस है, उस पर भी रोशनी पड़े, उनकी भूमिका पर, उनके एक्टिविज्म पर भी रोशनी पड़े, इतिहासकारों का ध्यान उधर भी जाए और जो इतिहास को पढ़ने वाले लोग हैं, जो इतिहास को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान उधर जाए। तो इस किताब में एक नैरेटिव है, एक कहानी है, लेकिन इसी के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लंदन से, कोलकाता से, आर्काइव से इकट्ठे किए गए हैं और उनको डाल दिया गया। तो एक तरह से बहुत बड़ा हिस्टोरियंस के लिए जो प्राइमरी मटेरियल जिसका कि महत्व होता है वो भी इसमें काफी इकट्ठा किया गया है। तो ये भी इस किताब का एक योगदान है। और आखिरी बात ये कि जो सारनाथ की जो डिस्कवरी हुई है, जो उसकी खोज हुई है, उसके साथ भी बाबू जगत सिंह का एक बहुत खास, बहुत अभिन्न, बहुत ही इंटीमेट रिश्ता है। सारनाथ को ढूंढने में भी जगत सिंह की विरासत है और इस विरासत को भी जानना जरूरी है। अक्सर जो हमारे पास दस्तावेज मिलते हैं उसमें सारनाथ की डिस्कवरी को कनिंघम और डंकन के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ये किताब हमें ये भी बताती है कि जो खुदाई की शुरुआत हुई थी, जब एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, तो उस पर सारनाथ, सारनाथ और वहां के स्तूप और वहां का जो बिल्डिंग मटेरियल था, उस पर सबसे पहले नजर जगत सिंह की पड़ी थी और सारनाथ के कंजर्वेशन में पहला कदम भी बाबू जगत सिंह ने ही उठाया था। तो ये भी बात सामने लाई जाने की जरूरत है। और अंत में इस किताब का सबसे बड़ा आग्रह और योगदान यही है कि इतिहास और इतिहास लेखन, अक्सर उसमें हम बात कनेक्टिविटीज की करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू की करते हैं, एक बिग पिक्चर करते हैं, जिसका कि एक महत्व है जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ इतिहास महत्वपूर्ण है अपने एपिसोड्स में भी, स्थानीयता के स्तर पर, स्लाइसेस के लेवल पे, स्लाइसेस ऑफ हिस्ट्री। तो स्लाइसेस ऑफ हिस्ट्री भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू और एक बिग पिक्चर है। ये किताब एक ऐसे ही स्लाइस ऑफ हिस्ट्री को हमारे सामने लाती है और उसकी कहानी है। और मेरे हिसाब से इसी तरह से मैं इस किताब को देखूंगा और इस किताब को लोगों के सामने रखने की वकालत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Professor Mishra, for your insightful observation, which have shed much light on the book. I'd now like to request Professor R.P. Bahuguna to say a few words. Mr. B.N. Verma, Prasoon, Professor Salil Mishra, Professor Mayank Kumar, Professor Dhruv Kumar Singh. When I was approached about
2 months ago by Mr. Pradeep Narayan Singh to read the book. And the book reached, he handed over the book to my department, in the office of the department. I was not able to read it for a long time. Then another copy came to me from Primus Publications, and I read the book. Since I'm a medievalist, I looked at it from the viewpoint of the post-Mughal 18th century period and thought that it was a work of local history. After reading the book, what I could make out was that it was basically a family history project, the project of Babu Jagat Singh royal family, and they formed a committee, and a historian was appointed, Dr. Shreya Pathak, and she wrote the detailed report. Then they realized that there has been some historical work on Babu Jagat Singh, if not directly, then part of a book which was written on another theme on Wazir Ali Khan, and there was a chapter on Babu Jagat Singh in that book, and that book in 2 volumes was written by none other than Dr. Qureshi. So they involved him in the project. So ultimately what you have before you is a work written jointly by 2 persons. One is Dr. Qureshi, who is an expert on Awadh history, who has written many books on Awadh history, and who has also written a book on sources for Awadh history. So I think he's a competent person to undertake an exercise of this kind. And the basic work was done, as I can make out, by Shreya Pathak, who is not there with us today, but I think her efforts also have to be appreciated. So it's a joint work by these 2 scholars. And then I think other members of the project also played a role in mobilizing the material, in collecting information from different archives, including India Office Library and regional archives in Banaras, in Kashi, in Allahabad, and in Calcutta. So on the whole, I think, as Professor Mishra also pointed out, it comes out as a work which is very rich and which can be looked upon as a work of local history and regional history. When I was reading it, I was reminded of some very interesting work that was done many years ago, almost 65 years ago, by Bernard Cohn, the famous anthropologist and historian on Banaras region. One article of Bernard Cohn is referred to in this book also in the bibliography, but unfortunately the insights have not been properly drawn from Bernard Cohn's work. Bernard Cohn had talked about 3 kinds of political systems in the 18th century, and if you look at those political systems from sitting in Banaras, from Banaras, then you have the Mughal imperial system, which now was represented by the Awadh Nawabi state. Then you have the Raja of Banaras, the Banaras Raj, represented by Balwant Singh and his descendants. Balwant Singh, I'm naming Balwant Singh because he was the king of Banaras for a very long time, for almost 30 years, between 1740 and 1770. So that was a very long period and very eventful period. And then the third tier of this political system is at the local level, the most dynamic level, the zamindars, the local magnates, the tax collectors, the ijaredars, because it is they who provided dynamism at the local level. And Bernard Cohn's study was a study of how these 3 levels of the political system interacted with each other, reinforced each other, or stood in a kind of hierarchical relationship with each other. So if you are
if you are looking for more details, more empirical information on how the regional system functioned, what kind of relationship existed between the central authority, because by the end of the 18th century, this three-tiered political system was reduced to two-tiered. Why? Because the British came and the British replaced the Mughals. The Awadh Nawabi state was also virtually gone. So it became just two-tiered state between the British and the Banaras Raja. The local level elements were also incorporated into the British system. Many of them were removed. Permanent settlement was introduced, as the authors have also said in this book. It was introduced in Banaras in 1795 during the time of, I think, Sir John Shore. And then many local zamindars were virtually destroyed. And that is where, I would like to make my intervention in this entire debate. When I read the book, I realized that Jagat Singh was by and large silent during 1770s and 80s. He made a claim for the rulership of Banaras right from the time when Balwant Singh died. He said he also is part of the ruling family. Because if you look at the history of the family, there are 4 brothers, and those who became kings belonged to the branch of the family that descended from Mansaram. But then there were other brothers, and I think, and if you look at the chapter which deals with Babu Jagat Singh's upbringing, then his ancestor, his grandfather, was one of the brothers of Mansaram, who was the founder of the Banaras Raj. So, what is interesting is that, as the book very clearly points out, that in 1781, after Chaitya Singh is sent into exile or he leaves Banaras, the British hand over the kingship to a member who belonged to the matrilineal side of the family, who was the son of Balwant Singh's sister. So that is where the problem comes. And this is where, this is the beginning of the story of Babu Jagat Singh from 1780 onwards, when he is trying to claim that he had a claim to be the king of Banaras because he belonged to the patrilineal side, to the male branch of the family. But what is interesting to me, and the authors have not made this point, but I would like to see how they would like to respond to this, that it is only from 1795, after permanent settlement is introduced, and company assumes and company takes the administration of Banaras in its own hands after 1795. And, the Banaras ruler's powers are drastically reduced. The company becomes the ruler of Banaras. Only some family domains are left for the Banaras Raja. And a direct relationship is established now between the company and the zamindars. And many zamindars are removed, amils are removed, they are in danger of losing their traditional rights. This is where Jagat Singh comes into picture. It is here now he starts, writing to Duncan, getting in touch with him, writing to the Governor General, to the Board of Directors. And those letters one letter has been cited in great detail in this book. It has been reproduced in the appendix also. It's a very interesting letter. Unfortunately, it has not been used in the way it should have been, because it reveals the mindset of an 18th century zamindar. Very, very rich in terms of information, what he thought about property rights, what he thought about religion, how he, what were his ideas about Shariat, about Dharmashastras, his own theory of kingship,
who deserved to be the king and who did not deserve to be the king. So this detailed letter, which he might have written in Hindi, because I could only read the English translation. आपके पास शायद हिंदी में होगा हो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि how, you know, his whole how the mental world of an insecure person, you know, a zamindar belonging to the ruling class, you know, operated. This letter would give a lot of information on this aspect. So this is, I think, one area where when you are revising the book, when the authors are revising the book, they can see how this material, which they have used for writing the history of relations between the British and the local Banaras chieftains, can be used for writing on many other aspects. So that is one thing. Secondly, I thought that you know, I think Muzaffar Alam's work on the 18th century, though it is not on the later part, it is on the early part, could have been used because on Banaras itself, there is very little information in the book, because Banaras was a prosperous city in the late 18th century, very prosperous. It was basic. I mean, you have cited Bailey in the beginning, but if you read Bailey's work carefully, you would know that there were large number of you know, merchants, rich merchants, prosperous merchants who played important political role, who were very close to the rulers, and in fact it appears to me that even Babu Jagat Singh was in contact with the merchants, because this uprising which he planned with Wazir Ali clearly, I mean the documents clearly show that he wanted money from the merchants to mobilize an army for the purpose of rebellion. So it appears to me that the prosperity of Banaras, the political culture that prevailed in late 18th century Banaras, the political system as it functioned, the transition that was occurring in the 1780s and 90s are all there. But I think there's a need to, you know, further work on it and bring it in tune with the existing historiography. And there again, I feel that there could have been a chapter on historiography, particularly historiography of, you know, rebellions in the pre-1857 period, and place Babu Jagat Singh's role in a historiographical context. That one chapter can be added on that. So these are some of the history ideas, you know, that have occurred to me. And that is all that I wanted to say just now. Maybe, you know, there will be other points that will be made during the course of the discussion. Thank you. Thank you, Professor Bahuguna, for enriching the ongoing discussion with your scholarly insights. Thank you very much, sir. I'd now like to request Dr. Mayank Kumar to talk about the book. बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, वर्मा जी, प्रसून, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। जैसा भी बहुगुणा साहब बोल रहे थे कि मैं भी मेडिवलिस्ट हूँ, तो ये एक सवाल मेरे सामने उठ रहा था कि इस पे मैं कितना बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ वजह थी इसके ऊपर मैंने इनके इनविटेशन को स्वीकार किया। लेकिन अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले कुरैशी जी और श्रेया पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी किताब लेकर के आए हैं और ये किताब कई और सवालों को जन्म भी देती है, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। सलील भाई बहुगुणा जी ने आपको कंटेंट के बारे में जानकारी दी, किताब किस पे बात कर रही है, क्या लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ पे ये किताब प्लेस की जा सकती है, लेकिन मैं एक और नज़रिए से उसको देखने की कोशिश कर रहा था, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अक्सर हम हिस्टोरियन से सवाल पूछा जाता है कि हिस्ट्री लिखी क्यों जा रही है, क्यों लिखी जाती है हिस्ट्री। अगर हम इस सवाल को देखते हुए इस किताब पर नज़र डालें, तब सवाल ये आता है ये किताब क्यों लिखी गई है। ये किताब खाली प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के लिए नहीं लिखी गई है, वो क्या मकसद रहे होंगे इस किताब के पीछे, इसकी वजह से इस किताब को कंसीव किया गया, और इट्स अ काइंड ऑफ कमीशन हिस्ट्री, क्यों लिखी गई है। आज के ज़माने में इस किताब का क्या रोल हो सकता है। मैं किताब को इतिहास के रूप में देख रहा हूँ कि इतिहास का क्या रोल है आज के समाज में, कैसे हम इसको रिसीव करेंगे, कैसे हम इससे इंगेज करेंगे। जब हम बोल रहे हैं तो हम प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की भी बात कर रहे हैं, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य रहा होगा इस किताब को लिखने के पीछे। ये सवाल सोचने के लायक है
क्योंकि एक मकसद रहा है इस किताब को लिखने के पीछे। हम लोग ने किताब लिखी है तो एक मकसद रहा है कि क्यों लिखी जा रही है। उससे जो दूसरा सवाल आता है, इस पर बहुगुणा जी ने अभी बाद में हिंट किया कि इसको लार्जर हिस्टोग्राफी में प्लेस करना चाहिए, वो बात है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी जो सवाल मेरे सामने था कि ये किताब ऐसे बहुत से सवालों का जवाब दे रही है कि क्यों लिखी गई है। जगत सिंह पे जो इल्जाम लगाए गए उसको ठीक करने के लिए, सारनाथ के एक्सकेवेशन में या सारनाथ की डिस्कवरी में उनका जो रोल है उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, या इतिहास में जो गलत तरीके से बातचीत हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक नजरिया ये हो सकता है, प्रीफेस में लिखा भी गया है, लेकिन एज ए हिस्टोरियन क्या जो प्रीफेस में लिखा गया है हम उसी को फाइनल मान लेंगे, या हम उससे इंगेज करने की कोशिश करेंगे, या हम उसमें और सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम इन सवालों से जूझेंगे तब इस किताब का महत्व और हमारे सामने खुलने लगेगा और समझ में आने लगेगा कि इस किताब को हम कैसे पब्लिक में रिसीव करने जा रहे हैं, पब्लिक इसको कैसे रिसीव करेगी। आज के जमाने में 2024 में बनारस पे किताब लिखी जा रही है विद द टाइटल द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस। हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत कंटेम्प्रेरी होती है, तो इस किताब के इस वक्त आने के और बहुत से आयाम हो सकते हैं। तो जो लार्जर हिस्टोग्राफी बाद में भी डेवलप करेगी इस किताब को रिसीव करने के लिए, वो इसको कैसे इंगेज करती है, ये वो सवाल हैं जो हमको एक और सवाल पे ले जाते हैं। अगर हम इसको कमीशन हिस्ट्री मान रहे हैं तो इसका उद्देश्य खाली वही था जो इसके अंदर था, अगर था तो इसने पूरा किया है, या अगर कुछ और सवाल जो एज अ हिस्टोरियन हमें एड्रेस करने चाहिए थे उसमें कहां तक ये किताब खरी उतरती है। इन सवालों को एक और नजर से देखिए। इस किताब की भाषा क्या है? ये अंग्रेजी में लिखी गई है, ये हिंदी में नहीं लिखी गई है। मुझे मालूम है हिंदी में लाई जा रही है, कोशिश चल रही है हिंदी में, क्योंकि उसी वजह से मैं इस किताब से जुड़ा था। इसको जब हिंदी में लिखने की बातचीत हो रही थी तो हमारे यहाँ इग्नू में किसी को अप्रोच किया गया था, उन्होंने मुझसे बातचीत की कि मैं इसको हिंदी में लाने की बातचीत हो रही है। लेकिन ये किताब आई अंग्रेजी में है, ये यथार्थ है, आज का सच ये कि किताब अंग्रेजी में आई है। तो इस किताब को जिस मकसद से लाया गया है उसको अंग्रेजी में ही क्यों लाया गया, ये वो सवाल हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा और तब हम इस किताब को समझ पाएंगे। जो किताब के जो कंटेंट है बहुत क्लियर नैरेटिव लिखा गया है, उसका एक पर्पस है जिसके बारे में सलील भाई ने बात की, बहुगुणा जी ने बात की। मैं उसको और ज्यादा थोड़ा सा यूं कह सकते हैं प्रोबेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इस किताब को लिखा गया है और कैसे ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अगर हम बनारस जनमानस की बात करें, ध्रुव ने बुलाया, हम बनारस गए हैं, बहुगुणा जी भी थे, वहां जाकर के लगता है अंग्रेजी में बोलेंगे तो बात बेकार हो जाएगी, सारी बात बेकार हो जाएगी अगर हम अंग्रेजी में बोलने लग जाएंगे वहां के ऊपर। वहां मतलब मेजॉरिटी जहां पे आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इस किताब को अंग्रेजी में लाना, हिंदी में आएगी लेकिन अभी अंग्रेजी में आई है, तो क्या जो हमारा एकेडमिक सर्कल है उसके अंदर अभी भी अगर ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, उसकी मजबूरी है, बंदिश है, ये हमारे ऊपर एक मैं शब्द यूज करना चाहूंगा, दो कंट्रोवर्शियल, त्रासदी है कि हमें अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। हम बनारस पे बनारस का इतिहास लिख रहे हैं और अंग्रेजी में लिखना पड़ रहा है, तो जो मेजर ऑडियंस है वो इस किताब से कट जाती है। तो किताब का जो स्टेटेड पर्पस है क्या वो सर्व कर पाएगी, ये वो सवाल है जो इस किताब के संग हमें जुड़े रहेंगे। जो बात बहुगुणा जी ने कही उसको मैं कहना भी चाह रहा था कि इसको एक लार्जर हिस्टोग्राफी में प्लेस करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। एंड एज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हम लोग इस सवाल से आज बहुत जूझ रहे हैं और आज के समय में ये सवाल बहुत सामयिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज के सरोकारों को 1799 पे लागू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम आज की कैटेगरी को वहां के ऊपर लागू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इस किताब के उद्देश्य के संग जो लार्जर हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन है उस पर भी एक कमेंट करने की कोशिश करने चाह रहा हूं कि अगर हम इसको, जैसा सलील भाई ने शब्द यूज किया, साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह के रूप में देख पाएंगे क्या हम? क्या साम्राज्यवाद का विरोध उस वक्त उस रूप में था जैसा हम आज समझते हैं? अगर नहीं तो हमें वहां की वोकैबुलरी के हिसाब से जगत सिंह को प्लेस करना पड़ेगा। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जगत सिंह को साम्राज्यवाद के विरोधी बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से हमको हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, तब हम इस किताब का सही आंकलन कर पाएंगे। तो ये वो सवाल हैं जो मुझे एक और दिशा पे, एक और मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। टीवी के ऊपर, फिल्मों के अंदर गुरु फिल्म आई धीरूभाई अंबानी को लेकर के, हर्षद मेहता को लेकर के एक बड़ा सीरियल बना, मैंने उसको देखा। क्या मकसद था उसका? वो भी इतिहास लिखा जा रहा था, वो भी एक तरीके का कमीशन इतिहास था। तो ये क्या एक हमें, जब हम लोग बात करते थे, मतलब मैं कह सकता हूं हमारी जनरेशन जो थी, हमारे सामने प्रिंट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आज सोशल मीडिया ने वो स्पेस ले ली जिसके अंदर हर्षद मेहता और धीरू अंबानी टाइप पे फिल्में बन रही हैं। क्या ये किताब उस परंपरा का हिस्सा बनने जा रही है
जहां के ऊपर जगत सिंह के कंट्रीब्यूशन को उनके वंशजों के हिसाब से प्रेस करने की बातचीत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें कुछ गलत है, मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस कोशिश को आज के समय में जो इतिहास समझा जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य पे भी देखने की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट हमको जो हिस्ट्री राइटिंग के फ्रेश नैरेटिव्स हैं उन पे और कोर्स करेक्शंस के लिए भी मजबूर करेगी। हम प्रोफेशनल हिस्टोरियंस को हमें अपनी इतिहास की उस समझ को रिविजिट करना पड़ेगा जहां पे हम सिर्फ आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट की बात करते थे, जिससे किताब बहुत रिच है। लेकिन जिनके लिए लिखी गई है उनके लिए आर्काइव्स का क्या महत्व है, हमें इस पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम इस किताब के मूल्य को वहां के समाज के संग प्लेस कर पाएंगे। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कुछ हमें एक्सेप्ट होंगे, कुछ हमें नहीं एक्सेप्टेड होंगे, वो अलग बात है। लेकिन किताब लिखने के इस प्रोसेस के अंदर जो लार्जर इतिहास को आज की समझ है उसको समझने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। यह बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। अपनी बात खत्म करूंगा यह कहते हुए, इस किताब का मूल्य या इस किताब के सहारे आज के समय को समझना इसकी आफ्टर लाइफ में समझ में आएगा। किताब पब्लिश हो गई है, उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, इसके ऊपर रिसीव की जाएगी, तो जो इसकी आफ्टर लाइफ होगी वो भी हमें ये बताएगी कि ये इसी वक्त जो किताब लिखी गई थी, इसी वक्त इसी टाइटल के संग ऐसी किताब क्यों आ रही थी। तो इस किताब का जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने है, अभी तो पब्लिश हो गई है लेकिन बाद में जब हम इस पर रिविजिट करेंगे तब हमें एक नई दृष्टि मिलेगी इस किताब को समझने की भी, आज के समय को समझने के लिए भी और 1799 को भी समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Mayank Kumar, for your observations. I'd now like to request Dr. Dhruv Kumar Singh to come and say a few words. भाई, नाम स्मरण की बड़ी महिमा है, तो बार बार मैं प्रदीप जी का नाम लूं या कुरैशी साहब का लूं मतलब नहीं है। आप लोगों का भी नाम ले लेके तो मेरी उम्र बीती चली जा रही है, क्या कर सकते हैं। देखिए, दो चार मुख्तसर सी बात कहनी है मुझे, वो मैं कह लेता हूँ। ये लोग तारीख़ के उस्ताद हैं और मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, ये फ़र्क है। तो अब उस नज़रिए से, और वो भी दूर दराज बनारस में हूँ और किताब भी वहाँ के खोए हुए नायक पे है। भाई, लॉस्ट हीरो से इतनी परेशानी क्या है? इतिहास का तो प्राइमरी काम है कि जो खो गया उसको ढूंढना, ठीक है। किसी ने ढूंढा, मोटिवेशंस कुछ भी रहे हों, होने भी चाहिए मोटिवेशंस अलग अलग। हमें ये किताब क्यों आखिरी तक पढ़ने की मजबूरी रही, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो बात कह दी गई है उसको पृष्ठभूमि में रखिएगा, मैं उसका खंडन मंडन नहीं कह रहा, क्योंकि हमारी बात उन सब बातों की पृष्ठभूमि में ही समझ में आएगी। देखिए, बनारस एक रीजन है, क्षेत्र है, और बड़ी लंबी परंपरा है उसकी। लेकिन जिस हिस्टोरियोग्राफी की बात ये लोग कह रहे हैं उसमें एक दुर्घटना हुई। बनारस को कैसे देखा जाता है? सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ डेथ, मोक्ष, और ऐसे कई खांचे हैं जिसके नुक्ते नज़र आप बनारस को देखते हैं। इसमें दुर्घटना ये हुई कि जो राजनीतिक बनारस था वो खो गया, वो फिसल गया, वो थोड़ा दरकिनार हो गया। और 2000 साल की राजनीति तो बहुत मेहनत मशक्कत की मांग करती है। ये कहते हुए कि जो बड़ा हैपनिंग सिटी है, मोस्ट वेल अटेंडेड सिटी है हिस्टोरियंस के द्वारा, बनारस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल अटेंडेड सिटी बाय हिस्टोरियंस।
लेकिन वहाँ भी ये दुर्घटना घट गई। और ये तो बहुत नियर पास्ट है, ये तो 18वीं सदी के करवट का समय है। उस समय के भी नायकों का लेखा जोखा या खलनायकों का लेखा जोखा। देखिए, इतिहास तो किरदारों से बनता है। वो किरदार नायक हो सकते हैं, खलनायक हो सकते हैं, वो नीचे तबके के हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं। भाई जमींदार ही जमींदार होंगे तो क्या होंगे, और नीचे ही तबके के लोग होंगे तो क्या फिर क्या इतिहास लिखेंगे आप। थोड़ी इस बात को समझें कि जो बहुत डायनामिक स्पेस है उसकी डायनामिज्म इतिहास में प्रतिबिंबित होती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक बनारस खोया हुआ बनारस है। और मुझे इस किताब में तमाम कमियों के बावजूद वो रक्त रंजित खोए हुई राजनीतिक इतिहास को वापस लाने की ललक, वो एक पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाई देती है। वजीर अली साहब, भाई बनारस एक ऐसा शहर था जहाँ मराठे भी रोज आते जाते थे, नवाबी के लोग भी आते जाते थे। एक तो फ्यूजिटिव शहर ही था, दारा सिकोह का भी शहर है, वो उतना ही पर्शियन मूवमेंट वाला शहर है जितना दिल्ली था। मैं तो अर्ज करता रहा कुरैशी साहब से कि ये बताइए कि आप कहते हैं बार बार कि जगत सिंह पर्शियन के अच्छे खासे विद्वान थे, तो और विजन वाले आदमी भी थे, वैलर भी था, तो कोई तो कसीदा लिखा गया होगा, किसी ने तो लिखा होगा। आपसे अर्ज किया था मैंने पिछले, पर्शियन लिटरेचर से कोई सोर्स नहीं है इसमें। वहाँ तो पर्शियन जानने वाले लोग भी थे, ठीक है। इट इज कंपैरेटिवली पर्शियन सोर्सेस आर मच लेस देन द आर्काइवल सोर्सेस। मैं कहना ये चाह रहा हूँ हुजूर कि जो बनारस शहर में पर्शियन सोर्सेस के जरिए जो इंटरवेंशन हिस्टोरियंस को करना था वो हुआ नहीं, ठीक। दूसरी बात, जब किरदार ही खोए हुए हों तो हिस्टोरियोग्राफी की बात करना थोड़ा सा मुझे बेमानी इसलिए लगता है कि अगर दीवार मजबूत ना हो तो उस पर कितना मुलम्मा चढ़ाइएगा। किरदार जब नहीं है आपके पास, उस समय क्या घटा क्या नहीं घटा इसका भी लेखा जोखा नहीं है। भाई बेली साहब ने जगत सिंह को कहीं याद ही नहीं किया। आप सही कह रहे हैं कि बनारस वॉज ए हब ऑफ बैंकर्स, लोग पैसा लेते थे, देते थे, युद्ध करने वाले भी लेते थे, अंग्रेज भी लेते थे, जगत सिंह ने भी लिया, वजीर अली साहब ने भी लिया। लेकिन ये सब कहाँ गए दस्तावेज? तो ये किताब मुझे एक संदर्भ देती है कि शायद इन चीज़ों की खोज की जानी चाहिए। जो क्षेत्रीय इतिहास हैं वो नेग्लेक्टेड रहे हैं, और बनारस तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भाई, काशी क्षेत्र है। जब वही नेग्लेक्टेड है तो मैं मुंगेर से आता हूँ, मीर कासिम का शहर था, कहाँ गए उसके बच्चे? एक सुरंग है शहर के ये में जहाँ से मीर कासिम भागा था, वो सचमुच सुरंग है। वो उसकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उस पर ये लाइब्रेरी खड़ी हो सके, उस पर सर्किट हाउस है दीवार पे बनी हुई, उसमें सचमुच घोड़े लेके दौड़ाए जा सकते हैं। लेकिन मीर कासिम का कोई लेखा जोखा नहीं। कभी एक किताब किसी ने लिखी थी मीर कासिम पे, उसके बाद लोग भूल गए। थीम्स एंड रीजन्स इन हिस्ट्री are not binaries, they are not antithetical to each other. Historians should rework their strategies to bring or to converge themes and regions together. ये हमारे हिस्टोरियोग्राफी की एक उसके कह लें उसके कलेवर की छटा इससे रह जाती है, चूक जाती है। ये इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। ये किताब हमें उस तरफ ले जाती है। दूसरी बात की जो सारनाथ वाली बात है, वो चैप्टर पढ़ के तो मैं सारनाथ गया, मैंने थोड़ा घूम फिर किया, फिर से इन लोगों को वो बताया नहीं। अब हमें एक बात बताइए,
वी क्लेम, भाई मैं तो वो बीए क्लास वाला मास्टर हूँ, तो बताते हैं कि हिस्ट्री इज़ वेरी साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो अगर फॉल्सीफाइबिलिटी का सिद्धांत लागू करते हैं, जब आपके पास फ्रेश एविडेंसेस आ रहे हैं कि समथिंग विच इज स्टेटेड, इफ इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज टू बी सस्पेक्टेड, अगर इतना दूर तक भी वो सोर्स ले जा रहे हैं, देन द क्वेस्ट शुड बी टू अंडरस्टैंड इट ऑल ओवर अगेन, उसको फिर से समझा जाना चाहिए। तो इल्जाम वहां तो लिखा हुआ है जगत सिंह स्तूप प्लेग पे। अब मैं सोचने लगा, जब मैं सारनाथ गया तो 50 बौद्ध पिलग्रिम्स कोरिया से, जापान से, वहाँ आप जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे। तो मैं ये सोचने लगा, हुजूर की ये बेचारे तो बौद्ध के स्थापत्य उस समय के तो पिलग्रिम की तरह आए हैं देखने, तो ये भी तो गलत जानकारी लेके जा रहे हैं। इफ फॉल्सीफाई हो रही है कोई चीज़ एविडेंस के जरिए, तो लेट अस चेंज इट और लेट अस ब्रिंग दैट कंट्रोवर्सी विद इन द नैरेटिव। उसमें तो लाना चाहिए ना कि ये बात, इस पे ये भी बात है, ये भी बात है। अब वहां तो लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने सब स्तूप का सत्यानाश कर दिया, उसका सीधा इंपोर्ट यही है। तो ये कहानी भी बताई जानी चाहिए। हमारी विरासत की गलत जानकारी दसों हजार तीर्थ बौद्ध यात्रियों को क्यों गलत जानकारी दी जाए, है ना? देखिए, रीराइटिंग, रीविजिटिंग एनीथिंग इज नॉट रॉन्ग। बात यह है कि उसके पीछे मंशा क्या है। तो अगर फैक्चुअली कोई बात को करेक्ट, इस पे तहकीकात और गहरी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लिखा गया किताब है उसको मान लिया जाए, लेकिन किताब ये बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो जो गड़बड़ है उसको दुरुस्त किया जाए, पूरी तहकीकात के बाद किया जाए। हो सकता है उस तहकीकात से गुजरने में कई और चीजें सामने आए, है ना? तो ये किताब ये नए नए द्वार खोलती है। अब जो मैं आपसे बौद्ध तीर्थ यात्रियों का जिक्र कर रहा था, तो थोड़ी देर के लिए सर ये सोचा जाए कि बुद्धिज्म की तो एक ग्लोबल हिस्ट्री भी है आज। तो बनारस का तो उस बुद्धिज्म के ग्लोबल हिस्ट्री में एक नया रोल ये किताब दर्शा रहा है, एक नए पात्र को उस हिस्ट्री से जोड़ रहा है। तो हम लोगों को तो ये निमंत्रण है, ये आमंत्रण है कि दिस शुड बी एक्सप्लोर्ड फर्दर एंड फर्दर। चूंकि ये किताब सवाल खड़े करती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको पढ़ा जाना चाहिए। ये जो हमने कई ऐसे बिंदु बताए जहां से प्रस्थान हो सकता है, कुछ नई जानकारियों के लिए ये प्रस्थान बिंदु बन सकते हैं। तो चूंकि ये किताब कई प्रस्थान बिंदुओं को हमें मुहैया कराती है, तो हमें लगता है उस नुक्ते नज़र से इसका स्वागत होना चाहिए। रही बात हमारे पहले जो अर्जी लगाई मैंने आपके सामने पर्शियन सोर्सेस की, हिंदी सोर्सेस की, मुझे आश्चर्य होता है कि भाई कोई आदमी है, इतनी कुछ चीज़ें वहाँ रक्त रंजित हुआ सब कुछ, तो इस पे कुछ गीत भी लिखे गए होंगे, कुछ इसका नमूना मिल जाता। तो देखिए, हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय इतिहास को थोड़ा सा इस दोष को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्षेत्रीय इतिहास अब एक दोयम दर्जे का इतिहास लेखन समझा जाने लगा है। इसको वापस उसके मयार पर लाने की ज़रूरत है। ये किताब इस बात को रेखांकित करती है मेरे ख्याल से। अब भाई मैं बनारस से आया हूँ, तो कबीर की नगरी है, तो निंदक नेड़े राखिए।
है ना, थामे कुटी छवाए, तो कुछ तो हमें भी इसमें। एक तो मुबारकबाद प्राइमस को कि उन्होंने ये किताब निकाली, लेकिन निकालने के क्रम में देखिए, जब कोई पाठक बहुत डूब के किताब पढ़ता है और तब अक्षर बेमेल हो जाते हों अगर सामने, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सड़क पे कोई स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ किसी यात्री को मिल जाए। इस किताब में बहुत सारे मिस्टेक्स रह गए। वो दोनों तरह के हैं, ग्रामेटिकल भी हैं और दूसरे तरह के भी हैं, टाइपिंग एरर भी हैं। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि ये एरर कोई दोष है, ये है कि इसे सुधारे जाने की गुंजाइश इसके दूसरे संस्करण में बनाना चाहिए। रही बात इसके अंग्रेजी में होने की, तो क्षेत्रीय इतिहास को पहले अंग्रेजी में और तब हिंदी में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि तस्दीक तो मुझे इन्हीं से करानी होगी कि ये इतिहास है ना, वरना कहाँ कोई मानने को तैयार है। सर आप बताइए, हिंदी में अगर हम पहले लिख देते तो लोग तो इसको दोयम दर्जे का पहले ही मान लेते। ये इसके किस किताब की कहानी नहीं है, ये कई किताबों की कहानी है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा स्वास्थ्य रहे, साथ दे, तो बहुत सारी ऐसी किताब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी में लिखी गई जिसको सिर्फ रीप्रिंट कर देना चाहिए कि कोई उसको पढ़ ले, जनसुलभ बना देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस लाइब्रेरी से हमें बहुत मोहब्बत है, आप लोगों को भी है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब होते थे बीएचयू में, मुकुट बिहारी लाल। तो प्रोफेसर साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे 1940-50 के दशक में, और उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की सबसे प्रचलित जो बायोग्राफी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में होती है और सबसे ज़्यादा फैक्ट्स जिसमें मिलते हैं, वो उन्होंने ही लिखी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसी शख्स ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 2 वॉल्यूम हिंदी में 500-600 पेज का लिखा था, जो मुझे ही इल्म नहीं था। मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ पिछले 18-19 साल से। फिर वहाँ मैंने कई लोगों से पूछा तो उनको भी कुछ पता नहीं था। अब मैं सोच रहा हूँ कि चिट्ठी लिखूँ, वो उस समय के उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी 50 में 60 में छपी थी, उनको पत्र लिखूँ कि भाई आप इसको दोबारा बस यूं ही छाप दीजिए, आप अपना कुछ मत कीजिए, कम से कम ये लोगों के सामने आ जाएगी। मैंने नेट वेट पे भी बहुत खोजा, वो मिली नहीं। तो ये क्यों मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये हादसा हजारों ऐसे किताबों के साथ हो चुका है और वो गर्त में चली गई। एक जब किताब लिखी जाती है किसी नायक पे, किसी नायिका पे, किसी क्षेत्र पे, किसी जगह पे, किसी घटना पे, तो वो कई नए द्वार खोलती है। ये जो कुछ मैंने कहा वो इसी बिना पर कि मेरे लिए ये किताब कई खिड़की दरवाजे खोलती है और मुझे इसलिए शुक्रगुजार होना चाहिए। भाई ये बताइए कि ये कमीशन्ड हिस्ट्री है, परिवार वालों ने इसीलिए लिखवाया कि उनका नाम धाम हो, सही बात है। यही अगर कोई पीएचडी कर लेता हमारी यूनिवर्सिटी में इसी रिगर के साथ, ये जो दुर्घटना हो गई है ना, कि मैं तो, मेरी अभिलाषा है, इच्छा है कि इतने ही लेवल का रिसर्च 5 साल के लग के कोई 2 हम आप कर सकें। हम आप न कर सके, किसी ने और कर दिया, तो हम उसका शुक्रिया अदा करें। ये मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ। ये तो बनारस में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये किसी और थीम के बहाने, नॉट नेसेसरली मोटिवेशन सिमिलर्स हों, मोटिवेशंस अलग हो सकते हैं। बनारस के किसी रिबेलियन की जीनियोलॉजी को फिर से कोई रिविजिट कर ले, देखे कि कैसे रिबेलियंस कैसे कब कब कहाँ कहाँ हुए। इसी को, हर शहर की अगर रिबेलियन की जीनियोलॉजी को रिविजिट किया जाए
तो हमें लगता है कि हमारे इतिहास के पन्ने कुछ और कहानी बयां करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Kumar, for sharing your views with all of us. Once again, I'd like to thank all the speakers for sharing their views with all of us and for the enriching discussion that we've had this evening. The floor is now open for questions. So if anyone has any questions for Mr. H.A. Qureshi or for our speakers, please feel free to ask your questions. मेरा नाम वलय सिंह है, मैं ऑथर और जर्नलिस्ट हूँ खुद, और अभी बनारस के ऊपर एक बुक पर काम कर रहा हूँ। आप लोगों का सुन के तो थोड़ा घबरा भी गया हूँ, इतने सारे हिस्टोरियंस और उनके विचारों को, और किस तरह का रिगर चाहिए ऐसी शहर को जो इतना वेल अटेंडेड है बाय हिस्टोरियंस है। पर मैं सबसे पहले प्रदीप जी को और कुरैशी साहब को और श्रेया जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतिहास के खोए हुए किस्से को, एक कहानी को वो बाहर लाए। पर उससे जुड़ा एक आई थिंक एक किस्सा रह गया है, इस बारे में मैं कुरैशी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सेंट हेलेना का क्या किस्सा है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। सर किताब में तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप आज अपने खुद उसको बयां करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप इसको तफसील से समझने की कोशिश करें या जो कुछ बोला गया उसे समझने की कोशिश करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। कि जो भी आदमी था, जिस आदमी के विरुद्ध ये एक्शन लिया जाना था, वो बाबू जगत सिंह थे। उनके विरुद्ध उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया। बात फिर वहीं जाएगी कि जो चीज़ उन्होंने की थी वो क्या था। वो ये था कि उस समय जो अंग्रेज़ों का शासन या धीरे धीरे बढ़ रहा था, पुरानी ताकतें ख़त्म हो रही थी, मुग़ल की ताकत जो थी उसको अंग्रेज़ों ने घुमा फिरा के किसी तरह अपने लिए हासिल कर लिया था। और जो पहले मुग़ल एम्पायर से मान्यता पाते थे, उनके पार्ट थे, उनके हिस्सा थे, वो अलग हट के फिर वो उनकी राजनीति चल रही थी कि किस तरह हमारा राज्य आ जाए और बाकी सब ख़त्म होते चले जाए। तो जो उन्होंने जब पहला काम किया, उनका जो था सोचना दोनों का, वज़ीर अली का और जो बाबू जगत सिंह जी का, कि ज़मान शाह अगर हमला कर दे तो उस वक्त अंग्रेज़ों को सेना फना जगह चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो उस समय हम सारे ज़मींदार मिलके इनको यहाँ से खदेड़ते हुए कलकत्ता तक ले जा सकते। ये उनकी थिंकिंग थी। तो किताब में जो लिखा गया वो ये लिखा है उनकी थिंकिंग क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी। उस समय उन्होंने 85,855 आदमियों से ये वादा ले लिया था कि जैसे ही हमला होगा हम सब आपके साथ मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाते हुए कलकत्ता तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ये चीज़ नहीं हो सकी, तो वज़ीर अली चूँकि मेन था, उसी के ज़रिए से और ये सब काम हो रहे थे, उनको अचानक कलकत्ता जाने के लिए कहा गया। तो आप एक प्लान बनाते हैं ज़िंदगी में, जीवन में भी प्लान बनाते हैं कि आज मैं ये करूँगा, उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो ये करूँगा, ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा। यही सब रहता है। यही इनके साथ भी था कि ज़मान शाह हमला करता तो ये करता, सिंधिया जी मदद करते तो मैं ये करता, 85,000 आदमियों से लड़ता। अचानक में आया कि नहीं, आपको कलकत्ता जाना है, 15 दिन का समय है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने चले जाते चुपचाप कलकत्ता। उन्होंने कहा नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, ज़मान शाह नहीं आ सकता, सिंधिया जी हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे इतने भाइयों ने हमसे कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम बढ़ो, तो आगे तो बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारी सफलता के 5 दिन के अंदर हम 80,000 आदमी आके खड़े हो जाएंगे। ये था। तो अंग्रेज़ों ने जब उनको पकड़ा, उनके ऊपर मुकदमा चलाया, ये सोचा कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है, अभी तो हमारे राज्य पूरी तरीके से भारत में स्थापित हुआ ही नहीं, अगर ये फिर अगर कहीं इसको रखा गया, वहाँ से भाग आया, वहाँ से चला आया, तो ये अब 85 लाख लाया, पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। तो ये वो भय था, ये वो डर था उस आदमी से, इतनी उनके दिलों में दहशत बैठी हुई थी कि उनको पकड़ने के लिए 3 महीने तक इसी बनारस सिटी के अंदर 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा कि अगर अभी हमने उसको छेड़ दिया तो अभी यहाँ से शुरू होगी लड़ाई, और कहाँ जाएगी ये उन्हें भी पता नहीं था।
तब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले एक तारीख मनाई जाए, एक दिन निश्चित किया जाए, उस दिन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें बाबू जगत सिंह जी को भी गिरफ्तार किया गया। फिर उनमें मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद कहा कि नहीं, इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, इन्होंने तो बड़ा गलत काम कर दिया, सारे अंग्रेजों को मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अगर इसको फांसी दे देंगे, फांसी कितनी देर की होती है, कितनी देर का कष्ट से मिलेगा, फांसी पे लटके मर जाए। नहीं, इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, कुछ ऐसी युक्ति कराई जाए कि जिंदगी भर ये अपने दिलो दिमाग में ये उम्मीद लिए चले जाए कि तूने ऐसा किया था, देख इसका तुझे क्या नतीजा वगैरह पड़ेगा। उसको ऐसी जगह भेजा जाए जहां से लौट के ना आ सके। नेपोलियन को जब अंग्रेजों ने हराया था तो उसके एल्बा में कैद कर दिया, भाग आया था वहां से। तो अंग्रेजों को बाद में उसको सेंट हेलेना में भेजना पड़ा था, जो समुंदर के अंदर है, समुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहां से अगर आदमी आना चाहे तो आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, इस जैसे खतरनाक आदमी को बजाय यहाँ रखने के, बजाय फांसी देने के, सेंट हेलेना भेज दो। ये थी वजह जो उनको सेंट हेलेना भेजा गया। खौफ, डर, उनका भय, उनकी कर सकने की योग्यता, उनको अंग्रेजों से भगाने की एक युक्ति और होती। बना जैसे सिटी में 12,000 आदमी इकट्ठे किए गए, 5 घंटे अंग्रेजों से लड़ते रहे। बड़े बड़े लोग, टीपू सुल्तान, फला ढिमाल, सबको उन्होंने हरा दिया। अवध का नवाब खुद बक्सर में हार गया, बंगाल का नवाब खुद पलासी में हार गया। 5 घंटे वो 12,000 आदमी लड़े हैं इस बंगाल के, वो बनारस के शहर के अंदर। मामूली नहीं होता है। मस्केट्स, आर्टिलरी और जो और दूसरी तरह की उनके पास पावरफुल आर्टिलरी थी, उससे लड़ाई हो रही थी। बढ़ते थे आगे, 5-5, 6-6 दिन बाद हमले किए अंग्रेजों पे, और उनको आर्टिलरी लगा के बढ़ते हुए लोगों को पीछे भागाना पड़ता, मारना पड़ता था। 5 घंटे की लड़ाई के बाद तब वो हुआ कि भाई अब हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने यहाँ से जाना गोरखपुर मंजूर किया कि अब वहाँ जाके हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। वजीर अली का था, लेकिन बाबू जगत सिंह जी का नहीं गए, वो बहादुरी से अपनी जगह टिके रहे। मैंने कोशिश करी, नहीं हो पाई। तो देखिए, ज़िंदगी में यही चीज़ होती है, आपने एक चीज़ सोची, दूसरी चीज़ सोची, लेकिन अल्टीमेटली अंत में हमें ही करना पड़ता है। भारत की आज़ादी यूँ ही नहीं हो गई। ऐसी होते होते लोगों के दिलों में जज्बा उठा, इससे लोग जुड़े, जनमानस जागा, तो उसमें टाइम लगता है। वो तो सिर्फ पॉलिटिकल पावर हासिल करने का युग था। 18 सेंचुरी थी क्या, उसे तो समझो। जब उसे समझोगे नहीं तो आगे का इतिहास क्या लिखोगे। आज का इतिहास सोचते हो, वहां से आ जाता हमारे पास। ये विरासत नहीं है, ये थॉट प्रोसेस होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है इंसान का, उसके बनने में समय लगता है। एक आइडियोलॉजी होती है जो आदमी को लेके जाती है। आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, किसी ना किसी आदर्श पर, किसी ना किसी आइडियोलॉजी पर, किसी सोच पर टिके हैं। उनकी अपनी सोच थी, वो एक दौर था, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है हर जगह। डायनेमिज्म तो थी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड था। रॉयल्टी से ट्रांसफर हो रही थी चीज कॉलोनियलिज्म की तरफ, और कॉलोनियल थे वो सिर्फ इकोनॉमी। आज इकोनॉमी पे ही सारा दुनिया में इकोनॉमी की ही लड़ाई है। अब क्या रह गया, कौन किसको फतेह करता है। अरे सुपर पावर भी कुछ नहीं कर पा रही है जरा सी एक चीज को, जो कि हम सब मिलके चाहते हैं कि वो हार जाए। ऐसी चीज है। तो ये चीज होते होती दूसरी चीज, मैं इस प्रोजेक्ट से उस वक्त जुड़ा था जहां पर एक आदमी पहले से काम कर रहा था। उनका अपना एक प्रोग्राम था, उनके अपना चैप्टराइजेशन था। मेरा काम था उनको इनके उसको प्रोजेक्ट को पूरा करा देना। वो मैंने पूरा करा दिया। मैं करता तो ऐसे ही करता, हो सकता है जितने मेरे तमाम भाई कह रहे हैं हिस्टोरियन, मैं तो वैसे ही करता, मैं खुद हिस्टोरियन हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी और कोई पूछना चाहें, मैं हाजिर हूँ।
Thank you for answering that question, Mr. Qureshi. Do we have more questions? या वन क्वेश्चन, तो ऐसे कोई क्वेश्चन तो स्पेसिफिक नहीं है, मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा भी है। सबसे पहले तो ये जो प्रयास हुआ इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक पुस्तक के फॉर्म में आई, मैंने थोड़ी पुस्तक पढ़ी भी। अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी रेफरेंस दिए हुए, हर एक बात का एक रेफरेंस है, तो जो साइंटिफिक एविडेंस होता है ये पूरा एविडेंस है। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है कि अगर कोई मेडिवल हिस्ट्री पूरा थोड़ा अध्ययन करना चाहे तो कोई डिजिटल आर्काइव कहाँ अवेलेबल है इसके लिए? ये आर्काइव है क्या, ऐसे डिजिटल फॉर्म में हो जहाँ से कुछ मिल जाए? हाँ, ध्रुव जी ने कहा ना कि हमें कुछ खोजा इंटरनेट पे, कहीं कुछ मिला नहीं, तो ऐसे कुछ रिपोजिटरी बन रही है क्या ऐसे कि हिस्ट्री को लेकर के भी? अच्छा, चलिए सर कुछ बता रहे हैं, बबुला जी कुछ बता रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि medieval history कहाँ है? हाँ, कहाँ अवेलेबल है? डिजिटल आर्काइव हाँ हो रहे हैं, धीरे अच्छा, हो रहे हैं, डिजिटाइज हो रहा है। अगर आप देखें फॉर इंस्टेंस राजस्थान स्टेट आर्काइव्स बीकानेर, काफ़ी ऑलमोस्ट 40-50% उन्होंने डिजिटाइज कर दिया, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते नहीं, उस समय के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जानना है किसी को? हाँ बिल्कुल तो है, वो 18वीं सेंचुरी तक का बहुत मटेरियल है। नेशनल आर्काइव जैसे बता रहे हैं वो भी कर रहे हैं। जो है एक जोधपुर में मानसिंह पुस्तक प्रकाश है, वहाँ 18वीं शताब्दी की बहुत बहियाँ हैं, वो भी डिजिटाइज हुई हैं। जैसे इस पुस्तक के बहुत सारे सोर्स पूरी तरह से तो नहीं है कि आप ये कहेंगे पूरी तरह से नहीं, इस पुस्तक में बहुत सारे सोर्स तो लंदन से भी लिया हुआ है ना। पुस्तक में बहुत सारे सोर्स लंदन से भी लिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ कुछ सोर्स लिए हुए हैं। मिडिवल में आप मिडिवल की बात कर रहे हैं तो मिडिवल में लंदन से कहाँ से लिए होंगे? मिडिवल तो इंडिया का ही होगा ना। नहीं, उसके पहले का, थोड़ा उसके पहले भी अगर हम जाएं तो जो आर्काइव को लंदन में है, कुछ रिपोजिटरी वहाँ पे है, कुछ लिंकेज यहाँ से है क्या? इंडिया में जो रिपोजिटरी है उससे कोई लिंकेज भी बन रहे हैं क्या? नहीं, वो इंडिया के सोर्सेज हैं, हिंदुस्तान के सोर्सेज हैं। और अब जो है जगह जगह जो पहले भंडार थे जगह जगह, उन सबको डिजिटाइज किया जा रहा है और वो मिल भी रहे हैं आसानी से। कई जगह फीस दे करके, कई फ्री, कई जगह वो फ्री में मिल रहे हैं, कई जगह पैसे। थैंक यू। मैं भी एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था। अभी जो बात ध्रुव जी बोल रहे थे, डिजिटल आर्काइव्स को अगर हम रीजनल लोकल हिस्ट्रीज जोड़ना चाहेंगे तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंस के शुरुआती दौर के अंदर बहुत ज़्यादा काम एटलीस्ट इन प्रिंट कल्चर में अवेलेबल हुआ, बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई और अवेलेबल हुई। अब उनको डिजिटल किया जा रहा है। सो इस प्रोसेस को 2-3 रूप में देखना पड़ेगा। एक, आर्काइव्स की बात बहुगुणा जी कर रहे थे, जो हमें बीकानेर स्टेट आर्काइव में दिखता है, इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या जो लोकल लेवल के ऊपर हिस्ट्री थी उसकी जो समझ बहुत से पीरियडिकल्स में छपी, बहुत से जर्नल्स में छपी, अब वो भी डिजिटली अवेलेबल हो रहे हैं। सो मेडिवल देखने के लिए दिस नथिंग कॉल्ड मेडिवल आर्काइव्स। हम मॉडर्न की बहुत सी आर्काइव से भी मेडिवल को रेफर बैक कर सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस, बट वो बहुत सी जगह और रीजनल लेवल के ऊपर हम लोग अभी सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, साउथ में भी बहुत ज़्यादा डिजिटली चीज़ें अवेलेबल की गई हैं। थैंक यू। मैं रामचंद्र प्रधान, मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन और समाजवादी आंदोलन पर कुछ काम कर रहा हूँ। सिंह साहब के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बनारस के त्रिरत्न में गोपीनाथ कविराज, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यनारायण शास्त्री वैद्य, इनकी चर्चा होती। मुकुट बिहारी लाल जी ने आचार्य नरेंद्र देव की जीवनी लिखी है। उस जब आप चिट्ठी लिखे तो ये भी जोड़ दें उसमें, ये मैं कह रहा था। बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव पर भी एक पूरी मुकम्मल किताब लिखी थी, वो भी अगर रीप्रिंट हो तो मुकुट बिहारी लाल जी खुद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, आप सब जानते ही हैं, तो वो अगला क्वेश्चन। सुधीजनों, आज के इस उद्बोधन में कुछ चीजें मैं जोड़ देना चाहता हूं।
हम जब बहुत गहराई से सोचते हैं तो 225 वर्ष पीछे जाकर क्या कुछ हुआ था उसको खंगालने की कोशिश डॉक्टर हामिद अफाक कुरैशी साहब ने किया। और यहीं से प्रश्न उठता है कि 225 वर्ष पहले की हुई घटना में आखिर आज की तारीख में क्या मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गवाह होगा 225 वर्ष पहले का कि आज की तारीख में मिलेगा, सिवाय कागजात और दस्तावेजों के अतिरिक्त हटके हमें क्या मिलेगा। लेकिन जो मैं जोड़ने की वाली बात कह रहा हूं, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई और मैं सोच रहा था कि मैं शुरुआत कैसे करूं। लिखने वाला चाहता है कि लोग पढ़ें 225 वर्ष पहले क्या हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री देखने वाला तो सोचता है कि क्या हुआ था वो आंखों से देखूं। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि 225 वर्ष पहले जो लोग मरे होंगे इस कत्ल गारत में, वो तो यहीं दफन किए गए होंगे, उनकी लाशें इंग्लैंड नहीं गई होंगी। इलाका वही रहा होगा, छावनी इलाके का मिलिट्री, जहां यह घटना घटित हुई थी। और इससे एक बत्ती जली कि उन कब्रिस्तानों में खंगाला जाए क्या 225 वर्ष पहले का कुछ है। और जो मैं जोड़ने की बात कह रहा हूं सुधीजनों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वाराणसी के मकबूल आलम रोड स्थित ईसाइयों की कब्रिस्तान में 7 जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, उसमें कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस और ग्राहम, इनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं। लेकिन यह दिलचस्प नहीं था मेरे लिए। दिलचस्प तो यह था कि उस पर लिखा हुआ था कि 14 जनवरी 1799 की उस बगावत में ये मारे गए थे। यह भी आश्चर्यजनक नहीं था मेरे लिए। आश्चर्यजनक तो यह था कि दुनिया में आज तक मैंने कोई ऐसी कब्र नहीं देखी थी जिस पे मरने वाले के साथ साथ मारने वाले का भी नाम लिखा हो। और जिसको दस्तावेजी प्रमाण चाहिए वो काशी के अंदर जाके मकबूल आलम रोड स्थित उस कब्रिस्तान को देखे जिस पे मरने वालों का नाम लिखा है और साथ ही में लिखा है मर्डर्ड बाय वजीर अली 14 जनवरी 1799। इसलिए मैं कुरैशी साहब को धन्यवाद देता हूं कि 225 वर्षों का जो कुछ हुआ उसको किताब में लाने का उन्होंने प्रयास किया। और रही बात उद्देश्य की, सवाल पूछा जा रहा है कि इसको लिखने का क्या उद्देश्य। मैं तो सिर्फ एक उद्देश्य जानता हूं कि हमारे पुराने लोगों की यह वो विरासत है जिसको पढ़ने वाली आज की पीढ़ी अगर पढ़े तो वो राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इसलिए इस तरह के इतिहास का आना बहुत जरूरी है और ऐसे लोग भी होने बहुत जरूरी हैं जो उसे खोज कर लाकर समाज के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी सी बात जोड़ने के लिए। थैंक यू। Okay, thank you so much. So before we end the evening's program, you'd like to say that it has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of our organization, I'd like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, Professor Salil Mishra, Professor R.P. Bahuguna, Dr. Mayank Kumar, Dr. Dhruv Kumar Singh, and Mr. Pradeep Singh. Sincere thanks are also due to Mr. Sugat Jain, Dr. Prasoon Chatterjee, Mr. B.N. Verma, and the entire team of Primus for their cooperation. Finally, I'd like to thank all of you present here for finding the time to be with us today and for helping us make this event a grand success. Thank you, one and all. Thank you so much, everyone, for joining us today.
Good afternoon to all of you. My name is Rishabh and I am a research scholar in Delhi University History Department. और ये जो किताब आई है we all know कि अभी यहाँ बुक लॉन्च हुआ है तीन मूर्ति लाइब्रेरी में, and I just want to say that कि I've not read the book full, but I think it is a major contribution in the existing historiography and particularly the political history of Banaras in 18th century and after 1780s onwards, and the bibliography is quite rich and the archival sources, whether the sources have been used by different archival institutions like India Office Library, Allahabad Archive, National Archive, and I will just say that I think we all know the existing historiography on the city of Banaras or for the political history of Banaras or for the cultural history or so for economic history is quite rich, and it has come a long way, right from B.S. Cohen to C.A. Bailey to Seema ma'am and all those sorts of historians, and this book I think in coming decades it has posed important question, and in coming decades it will definitely open the door particularly for the political history of Banaras. अंग्रेजी में तो किताब आ चुकी है, अब हिंदी में 1 महीने में आ जाएगी। बनारस के जो नायक हैं विस्मृत नायक बाबू जगत सिंह, तो जनमानस को पता लगेगा कि क्या है, क्योंकि अंग्रेजी आंग्ल भाषा होने के नाते बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, जैसा हम चाहते थे कि ये आम लोगों तक पहुँचे, लेकिन 1 महीने में सारी चीज़ें सबके पास पहुँचेंगी और इतिहास बदला जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। रश्मि जी, आपने हमारे आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में भाग लिया। यस सर। और विद्वानों को आपने सुना और यहाँ द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह किताब भी खरीदी। जी, मैं थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया टिप्पणी जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे इसको आत्मसात किया, कैसे ग्रहण किया, आप क्या कहना चाहेंगे आज? तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे 4 डिस्कशन पैनल में जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने अपने व्यूज़ दिए द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह, जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या जो पॉइंट्स हैं वो लैकिंग भी हैं और क्या एडिशन हो रहा है। तो मुझे जो बात अच्छी लगी वो ध्रुव सर की काफ़ी अच्छी लगी। ध्रुव सर की जो उन्होंने ये बोला कि हम इसको ऐसे पाथ में दे सकते हैं कि जो पॉलिटिकल हिस्सा जो हट गया था बनारस का, हमें वो पहचानने का वापस से मौका मिल रहा है। तो मुझे वो पॉइंट एक काफ़ी अच्छा लगा जहाँ पे ये जाना जा सकता है और पढ़ा जा सकता है कि हम एक इस तरीके से जब आप इस किताब को पढ़ेंगी तो 2 बातें आपके सामने आएंगी, उस पर फिर चिंतन करिएगा, फिर आगे बताइएगा हमको। पहले ये बात कि सारनाथ में थोड़ी सी इनके बारे में निंदा की गई, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं लिखा है, तो ये जो बदलना जरूरी है। दूसरा ये कि इस हीरो को बनारस ने भुला दिया, क्या कारण था कि इनका इतिहास दफन हो चुका, हम लोग फिर से निकाल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो मजे से इसको पढ़िएगा, आगे खूब बढ़िया टिप्पणी करिएगा। रश्मि जी। सर ये जो आप बता रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसको अच्छे से मात दे सकता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो डॉक्यूमेंट के वे में, दस्तावेज के वे में इनको डिफेंड करने के लिए। जब आप सारनाथ में जाएंगी धमेक स्तूप के पास जो है वो धमेक के नहीं धर्मराज का स्तूप के पास लिखा हुआ है कुछ चीजें, तो वो टैबलेट वो प्लैग बदलना पड़ेगा क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा है। चलिए चर्चा होगी, धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। लगता है कि बारे में क्या कहना है आपको? यह जो टोटल पुस्तक है यह 2 पार्टों में बटी हुई है पुस्तक। इसका पहला भाग है जो ये बताता है कि बाबू जगत सिंह का 1799 में देश के अंदर जो काशी में पहली बगावत हुई अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें क्या रोल था। और इसका दूसरा पार्ट खींच के ले जाता है सारनाथ में। सारनाथ बौद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ उत्खनन की जितनी सामग्रियां मिली हैं वो सब वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। और वहाँ अंदर जब आप जाएंगे पुरातत्व विभाग के उस पूरे स्थल पे, तो एक शिलापट्ट लगा हुआ है, जिस शिलापट्ट पे ये लिखा हुआ है कि इस स्थान की खुदाई कर्नल सी मैकेंजी और कनिंघम ने की थी। लेकिन साथ में वहां जगत सिंह का भी नाम आता है कि इस स्थान की सबसे पहली खुदाई करने वाले बाबू जगत सिंह थे।
लेकिन एक ऐसा वाक्य लिखा हुआ है जिसके ऊपर यह पूरा शोध कार्य प्रारंभ हुआ और जिसकी परिणति इस पुस्तक के रूप में आई। वो वाक्य ये लिखा हुआ है कि बाबू जगत सिंह ने उत्खनन के दौरान इस पूरे स्थल को विनष्ट कर दिया, जबकि जगत बाबू के राज परिवार के लोगों का कहना है कि यह सही है कि उत्खनन उन्होंने किया लेकिन विनष्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे एक खुदाई में मंजूषा मिली। उस मंजूषा में कुछ अस्थियां थीं, सोने के पत्थर थे, मोती थे, और यह मिलते ही उन्होंने खुदाई कार्य रुकवा दिया, अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया और जो मंजूषा मिली उसे एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल को ले जाके उन्होंने दे दिया। आज की तारीख में भी एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में उस मंजूषा को देखा जा सकता है जो बाबू जगत सिंह ने जमा कराया था। और इनके फ्रीडम फाइटर की जहां तक की स्थिति है, आज भी वाराणसी के अंदर 225 वर्ष पुरानी वो कब्र मौजूद है जो वाराणसी के 1799 की उस बगावत में मारे गए 7 अंग्रेज अधिकारियों में 4 अंग्रेज अधिकारियों की है। कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस और ग्राहम। और उस पूरे कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि मर्डर्ड बाय वजीर अली। भले 225 वर्ष का कोई गवाह आज की तारीख में हमें न मिले, लेकिन काशी के अंदर की वो कब्र और आसमान में चमकता हुआ सूरज जो उस वक्त भी था, आज की तारीख में है, ये 2 सबसे बड़े गवाह हैं इस पूरे पुस्तक के, जो हमेशा माइलस्टोन के रूप में ये सारी कहानी बताते रहेंगे पूरी दुनिया को इस पुस्तक के संदर्भ में।